Hello, welcome to you in this YouTube video. In today's video, we are going to learn over here how there is a variation of deviation angle with the incidence angle uh, when the refraction is taking place from the prism. For this purpose, I have considered the two axes. One it is along x-axis and another it is along y-axis. So incidence angle that I am going to consider it toward this x-axis, while that deviation angle is taken along y-axis. For this, let us to look for the table. So this is that practical observation of that experiment. Over here, that there is a one column in which angle of incidence is written, while in another there is the angle of deviation. Okay, so when there is the angle of incidence is 30 degrees, so at that time deviation was 43. Now this is angle of incidence is 40 degree, so here it is 39. Now next is that angle of incidence is 45, so deviation angle is 37. So just to notice over here, and that we are looking this one, it is going to increase in downward. Angle of incidence is increasing downward. Look up over there, 30, 40, 45, 50, and thereafter 60. So angle of incidence is increasing in downward direction. Okay, so you will notice over here that it is increasing. But you will just notice over here that at 30 degrees this angle was 43, thereafter it is 39, thereafter it is 37. Okay, so we are looking that as the angle was going to increase, so this deviation was going to decrease. Okay, so over there that in downward direction this deviation was decreasing over here. So here we are looking that it is decreasing 43, 39, 37. But after of this you will note that on this angle 50 degree, this deviation becomes 38. So there is a little bit increment in that angle of deviation, and when there is further increase in the incidence angle, so there is again increase in this that deviation angle. So we are looking over here that there is the increase. So this side you will find that there is the increase. So just to note over here कि ये जो फर्स्ट थ्री रीडिंग थी, फर्स्ट थ्री रीडिंग में क्या हो जाता है हमारे पास, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा था ये डिक्रीज हो रहा था, और हमारे पास फिर बाद में क्या हो जाता है, ये जो डेविएशन एंगल है ये उस इंसिडेंस एंगल के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है. सो लेट अस टू लुक ओवर हियर दिस वेरिएशन. ठीक है, तो हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल था 30 डिग्री के ऊपर वो ज़्यादा था, उसके बाद ये डिक्रीज़ होता है. ठीक है, डिक्रीज़ होने पर ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाता है, लेकिन डेविएशन जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ एंगल एट विच दिस डेविएशन इज़ मिनिमम. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जिसके बाद ये क्या हो जाती है, जो डेविएशन है वो इंसिडेंस एंगल के साथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज दैट ग्राफ विच वी आर ऑब्जर्विंग. ठीक है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से लेट मी टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट. यहाँ से इस पार्ट तक अगर हम नोट करें, ठीक है, यहाँ से इस पार्ट तक नोट करें. ठीक है, मेक इट योर फर्स्ट पार्ट, देयर आफ्टर इट इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में दिस इंसिडेंस एंगल is inversely proportional to that of this डेविएशन एंगल. ठीक है, तो जो डेविएशन एंगल है हमारे पास वो क्या हो जाता है, इंसिडेंस के इन्वर्स हो जाता है. मतलब कि हमारे पास जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ता है डेविएशन कम होती जाती है. ठीक है, नेक्स्ट ओवर देयर इन सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो इंसिडेंस एंगल के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो डेविएशन एंगल है ये बढ़ जाता है. ठीक है, सो देयर आर द टू पार्ट ऑफ दिस ग्राफ. नाउ यू विल फाइंड ओवर हियर देयर इज मिनिमम डेविएशन. इसमें क्या हो जाती है, जो डेविएशन है सबसे कम शो हो रही है इस ग्राफ के अंदर, जो लोएस्ट कर्व है यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज शोइंग टू अस दैट डेविएशन इज लिस्ट. सो दिस इज मिनिमम डेविएशन. ठीक है, तो डेल्टा एम मतलब कि मिनिमम डेविएशन की बात हम कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन.
तो मिनिमम डेविएशन क्या हो गया, दैट इट इज लीस्ट डेविएशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो लिस्ट डेविएशन हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला गया है, मिनिमम डेविएशन बोला गया। ठीक है, सो दस वी आर लुकिंग ओवर हेयर व्हेन दिस डेविएशन विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ये डेविएशन कब मिनिमम होती है, तो हमारे पास दिस साइड इट इज़ व्हाट, इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस बोथ आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मिनिमम डेविएशन कब होती है, जब आई और ई आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब जिस एंगल के ऊपर प्रिज्म पर लाइट फॉल कर रही थी उसी एंगल से वो प्रिज्म से बाहर आ जाती है। सो एट दैट टाइम ये जो डेविएशन है वो मिनिमम होती है। ठीक है, so thus we have seen over here that how there is a variation of this I with E. Now let us to look over here how to draw the diagram of this refraction of light through the prism in minimum deviation condition. Okay, so over here I have considered this equilateral prism. So here it is the angle of prism between the two slanted surfaces. Now there is the perpendicular drawn on this PQ line. So I have called this is as N1, and a ray is going to incident at an angle I. So it is going to fall at point B. नाउ वी आर लुकिंग ओवर हेयर कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है वो कैसे शो की जाती है। सो रिमेंबर ओवर देयर व्हेन इट इज मिनिमम डेविएशन, सो दैट टाइम यू हैव टू टेक रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, सो ओवर हेयर दिस इज रिफ्रैक्टेड रे अगेन एट दिस पॉइंट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। Okay, so from here this ray will go out now, it will base bend toward the base. Okay, so this time this is the angle of E. ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, एट मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमारे पास बनते हैं, फर्स्ट थिंग इज देयर कि ये जो इंटरनल एंगल्स होते थे जिनको हम R1 और R2 लिखते थे जो प्रिज्म के अंदर बनते थे। ठीक है, एट मिनिमम डेविएशन जो इंसिडेंस और एमरजेंस एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर। सेकंड कंडीशन ओवर देयर, जो R1 और R2 है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, R1 और R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज देयर दिस BC क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सो इट बिकम्स पैरेलल टू दैट बेस। ठीक है, तो ये बेस के पैरेलल हो जाती है, PR, बेस कौन सा है यहाँ पर, PR है। ठीक है, तो इसके ये पैरेलल हो जाती है। सो दस वी कम टू नो देयरफॉर जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या लिखा जाता है, R1 + R2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास एट मिनिमम डेविएशन के ऊपर है, एट मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो ये जो डेल्टा था वो डेल्टा M हो जाता है, इट इज़ डेल्टा M ओवर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो A है वो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ R हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, उस प्रिज्म के एंगल का हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म व्हाट इट विल बिकम, थ्रू प्रिज्म, तो प्रिज्म से ये जो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगी। सो दिस इज, पहले क्या लिखी गई थी, A+ डेल्टा इक्वल टू I+E। ठीक है, अब हम किस कंडीशन के ऊपर लिख रहे हैं, एट मिनिमम डेविएशन के ऊपर, एट मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या हो जाएगी, इट इज़ A+ डेल्टा M इक्वल्स टू I+E। ई और आई आपस में इक्वल हो जाते हैं मिनिमम डेविएशन पर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, I+I, यानी कि डबल ऑफ I हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू A+ डेल्टा M/2। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एट मिनिमम डेविएशन की बात हो जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर कि हमारे पास
जो स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल लिखा था हमने स्नेल्स लॉ में, ये होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल, है ना। सो इट इज इक्वल टू साइन आई, प्रिज्म के लिए कैसे लिखोगे एट मिनिमम डेविएशन, साइन आई, आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ये लिखी ना अभी वैल्यू कैलकुलेट की, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन आर, तो साइन आर, आर की वैल्यू क्या होगी एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ, दिस इज साइन आर। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट विच कलर विल डेविएट मोर एंड विच विल डेविएट लिस्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास डेविएशन है दैट हाउ वी कैन राइट दिस वन, तो जो डेविएशन है हमारे पास दिस इज थ्रू द प्रिज्म is given by that of it is given by n minus 1 into a, ओके। सो ओवर देयर दैट एंगल ऑफ डेविएशन जो है हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए डेविएशन ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। तो जो डेविएशन है वायलेट की वो ग्रेटर होगी दैन दैट ऑफ रेड कलर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम।